Welcome dear students to the Path Online Tutorials. Dear students, as in the previous tutorials we had started with a new chapter, that was chapter number 8, Human Health and Diseases. So let me make you revise about the basic terms that we had gone through in the previous tutorials. Okay, first of all we had gone through health. Health according to who? According to the World Health Organization in 1948, World Health Organization says health is a state of physical, mental and social well-being of a person. I am repeating again. Physical, mental and social well-being of a person. A health is achieved not only by the personal hygiene but also by the surroundings. So, health states physical, mental and social well-being of a person. Next we had gone through diseases. What does a disease mean? It means any discomfort or abnormal, I am repeating again, abnormal functioning in any part of our body leads to diseases. Okay, and diseases are found with the help of some signs and symptoms. Signs and symptoms. Okay. मम्मा मैं बोलूंगी नहीं. Next comes types of diseases. So there are two types of diseases. One were infectious and non-infectious. Infectious and non-infectious. हमने डिफरेंस के फॉर्म में भी करा था. इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल एंड नॉन इन्फेक्शियस दे आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल. क्लियर बेटा? तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन से होते हैं? विच ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और from a diseased person to a healthy person. तो वो कौन से आ जाएंगे? इन्फेक्शियस. इसमें हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, कुछ फंगल डिजीजेस. क्लियर? And non-infectious diseases which do not get transfer from one person to another or from a diseased person to a healthy person. Okay, so इसमें example क्या आएंगे हमारे? This is non-communicable, right? तो इसमें examples क्या आएंगे बेटा? It is cancer, autoimmune diseases जैसे कि arthritis. Clear? Okay. Now we will revise with the types of infectious diseases. So there were 5 types of infectious diseases and they were: number 1, bacterial, protozoan, helminthic जो वॉर्म्स के थ्रू होता है बेटा, है ना, हमने करी थी. हेलमिंथिक, फंगल एंड वायरल डिजीजेस. So they are infectious diseases which are present in our syllabus and we will cover them. In bacterial diseases, in the previous classes we had studied about the bacterial, प्रोटोजोआन एंड हेलमिंथिक इन डिटेल. मैं आपको एग्जांपल एक बार रिकॉल करा देती हूँ. बैक्टीरियल में बेटा हमने करे थे टाइफॉइड, डायसेंट्री,
इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जिसमें हमने इनके कॉजेटिव एजेंट, इनके सिम्टम्स, इनका क्योर, वट एवर, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे हमारा टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है, ठीक है, ये सब हमने डिटेल में करा था, वो सब आप करेंगे बिकॉज इन योर सीबीएसई बोर्ड्स एनी ऑफ द डिजीजेस कैन कम इन डिटेल। ओके, प्रोटोजोन में हमने मेनली कवर किया था आपका मलेरिया, जिसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कवर किया था। हेलमिंथ्स में जो कि डिजीजेस विच आर रिलेटेड विद वर्म्स, जो कि किसके कारण होती है, वर्म्स से, ठीक है। इसमें वर्म्स में बेटा कौन कौन सी आते हैं, राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स एंड अर्थ वर्म्स। लाइक राउंड वर्म्स, फ्लैट वर्म्स होती है प्लैटीहेलमिंथस, राउंड वर्म्स में फाइलम नीमेटोडा एंड अर्थ वर्म में फाइलम एनालिडा। ओके, now today we will start with the fungal disease and the viral disease. Fungal diseases and the viral disease. Clear? Yes, dear students, as we had discussed three types of diseases in the previous chapter, in the previous tutorials, and they were bacterial, protozoan and helminthic. Okay, so today we will start with the viral diseases and fungal diseases. सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको वायरल डिजीजेस के बारे में। वायरल डिजीजेस आर डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरस, एनी कैटेगरी ऑफ वायरस, है ना। आपको बताइए जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना जो हुआ है हमारी, दैट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। यस, तो वायरल डिजीजेस में द डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, इसमें हम जो कवर करेंगे बेटा, कौन कौन से डिजीज हैं जो हमारे सिलेबस में हम कवर करेंगे, दे आर कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, सी चिकनगुनिया। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड की। जो कॉमन कोल्ड होता है दैट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस, और कौन से ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं वो, दे आर राइनो वायरसेस, सो इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस, ठीक है। जैसे डेंगू फीवर होता है, इट इज कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। सो वी हैव कैटेगरीज ऑफ वायरसेस, ठीक है ना। Common cold is caused by rhinoviruses and dengue fever is caused by flavivirus. और जो चिकनगुनिया होता है बेटा, it is caused by चिकनगुनिया वायरस, ठीक है, it is caused by चिकनगुनिया वायरस। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड में जनरली क्या होता है कि ये जो वायरस होता है ये मेनली हमारा इन्फेक्ट करता है नेजल एपिथेलियम को, द एपिथेलियम विच इज फाउंड इन द नोज, सो इट इन्फेक्ट्स नेजल एपिथेलियम, ठीक है। एंड ये ऑल्सो इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी पैसेज, सारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज, है ना। तो यहां से एंटर करके और सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, जो हमारा राइनो वायरसेस होते हैं। अच्छा, अब इसके जो मेनली सिम्टम्स होते हैं, कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या होता है आपको बताइए है, जैसे नेजल डिस्चार्ज, sometimes it is also accompanied with fever, ठीक है। नेजल डिस्चार्ज, कफ, ठीक है। हॉर्सनेस का मतलब होता है कि गला भारी भारी हो जाना, है ना, ऐसे कहते हैं वॉइस बहुत ज्यादा हैवी हो गई है, तो हॉर्सनेस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हॉर्सनेस हो गया, फिर उसके बाद बिकॉज इतने सारे देखो ये हमारे साइंस एंड सिम्टम्स है, इसके कारण टायर्डनेस, फटीग, क्लियर। सो दीज आर सम ऑफ दी साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड, ठीक है। इसका जो अटैक होता है राइनो वायरसेस का, इट विल लास्ट फॉर 5 to 7 days, ठीक है। इसका जो अटैक होता है वो 5 to 7 days, लाइक इतने डेज लेता है टू रिकवर, ठीक है ना, इतना डेज लेगा ही लेगा टू रिकवर फॉर द कॉमन कोल्ड मेनली।
अच्छा, फिर आता है हम डेंगू फीवर की बात करते हैं, जिसे दैट इज कॉज बाय द फ्लेवी वायरस। अब ये जो डेंगू फीवर होता है, इट इज कॉज बाय अ मॉस्किटो, मॉस्किटो की बाइट से होता है। कौन सा? फीमेल एडीज, एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी है ना वायरस, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, सॉरी एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है जी। अच्छा, इसके काटने से होता है डेंगू फीवर, एंड बिकॉज वो कैरी कर रहा है कौन सा वायरस? फ्लेवी वायरस। कौन सा वायरस? फ्लेवी वायरस। ओके, नाउ अब ये जो डेंगू फीवर होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इट इंक्लूड्स रिडक्शन। आपको बताइए कि नॉर्मली आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? अबाउट 1.5 लाख, राइट? ठीक है, तो अब इनकी जो रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट काउंट accompanied with joint pain, high fever, अब इतना सब कुछ हो गया है, ऑब्वियसली फटीग, ठीक है, हाई फीवर, फीवर इतना ज्यादा भी हो सकता है कि इट कैन रीच अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इतना ज्यादा फीवर भी हो सकता है। एंड रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट काउंट। अच्छा, ये वाले जो डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर सॉरी, इट इज फैटल, फैटल डिजीज। फैटल डिजीज मतलब इट कैन लीड टू डेथ, इट कैन लीड टू डेथ। चिकनगुनिया, इट इज नॉन फैटल, ठीक है, ये डेथ नहीं कॉज करता है, लेकिन टाइम लेता है ठीक होने में, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस से होता है। ये भी जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी बेटा, ठीक है जी। एंड इसके जो सिम्टम्स होते हैं, मेनली जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होता है। वो इतना वर्स भी हो सकता है कि इट कैन लीड लाइक इट कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर, समझ गए, ठीक है। तो जॉइंट पेन हो गया विद हाई फीवर, क्लियर, जॉइंट पेन हो गया, हाई फीवर हो गया, रैशेज हो जाना बॉडी पे, ठीक है, क्योंकि इचिंग होती है पूरी बॉडी पे, तो उसके कारण रैशेज भी हो सकते हैं। एंड इट कैन लीड टू हेडेक, ठीक है। तो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया वायरस। सो वायरल डिजीजेस आर वेरी डेडली इन नेचर, बट वाई? बिकॉज वायरल डिजीजेस के लिए जो मेडिसिन होती हैं बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, यू ऑल नो दैट। वाई? बिकॉज जो वायरस होता है, वायरस की अपनी खुद का कोई भी वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी की मशीनरी को यूज करता है अपनी वर्किंग के लिए। दैट इज वाई वायरल डिजीजेस आर वेरी वेरी डेंजरस।